बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 2 मई 2026, समय हो गया है 08:14 तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार मुझे भी मेरे असाइनमेंट पूरे करने दो यार। अब मेरी भी सुन लो भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्यों नाराज़ होते हो। अब आप लोग तो पढ़ते नहीं ना मोबाइल पे वीडियो कैमरे वगैरह पे। एक हितेश ही तो है पूरी दुनिया में, हितेश मंडल तो है जो वीडियो बनाता है, बाकी तो कोई बनाता नहीं है ना। आप लोग तो कोई वीडियो बनाते नहीं हो ना पढ़ाते हुए, क्यों। खैर चलिए, कोई बात नहीं। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ मैं ये आपको बताता हूँ। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी ये। और टॉपिक ये है कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि लड़कियों पे या लड़कों पे ब्लास्फेमी लग जाती है, ईश निंदा, कि आपने देवी देवताओं के बारे में ऐसा कह दिया, या आपने मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा कह दिया, या आपने जीसस जी के बारे में ऐसा कह दिया, या आपने प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा बोल दिया। तो क्या किया जाए। मैं एक नाम लेता हूँ, ये केस है। मान लो मैंने झूठ, वैसे दिखा देते हैं ना पिक्चर के शुरू में, इस नाम का जीवित मृत किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है, पर ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। एंड द नेम इज माहिरा खान, a very famous film actress from Pakistani film industry. When Mahira Khan's case was introduced in Pakistan Supreme Court, was related to blasphemy in 2017, no, September 2nd, 2nd September 2017, the Mahira Khan was presented by ISI in Pakistan Supreme Court. No, not directly. She was visited the court as a very famous actress of Pakistan. She was there a celebrity. The case is on Mahira Khan was a blasphemy, and because of blasphemy what happened to her, and it is actually a very big fight between Mahira Khan and her father. Now the case is, so many persons ask, you can go to Hitesh Ivan, he can very easily can bring you out from the case, otherwise you will be in very big problem, because my one company is already involved in this case. When Kaaba, whatever I'm giving you, forget the name, whatever I'm giving you, each and everything is perfectly 100% fact check. Kaaba asked to my company Om Sri Sainath Advertising to release media value of Mahira Khan. The earlier the media value was announced by the Kaaba itself was only a 1000 crore Indian PKR. Why I am giving you this data to you? Because as the Supreme Court of Pakistan announced, because she was wearing that day, I think, sari. That's why she was under blasphemy. What happened? Supreme Court of Pakistan announced her to visit Kaaba as an Umrah. Now, what is Umrah Act? Whenever in Islam Shariat announced blasphemy on any person, especially on female, they seize entire property of that lady and they guide those ladies to Kaaba
especially go under a special kind of surgery. In that surgery, they put a kind of a worm. Otherwise, if she is a very good lady in Islam, not under blasphemy act, they will put a diamond or a pearls inside the body of females. Otherwise, they will put worms like a snake, like earthworms, like bacterias, like cocoons inside the body of female. So suddenly what happened? The Mahira Khan called up to a very powerful Jewish network, Haqqani network, and she was shouting on them about her problem, because as she visited to Kaaba and she gone through the surgical treatment, and they put a snake kind of a worm inside her, near to the thighs somewhere, and it was very bad. And they announced that you are not allowed to brought it out by surgical, by anyone, any in any hospital. If you try to do so, we will kill you. And since then she was under very hard surveillance. Now it is a very painful life. Since the 2018 to till date, she was feeling that pain. It is Umrah, a punishment by Islam to females, was under blasphemy act. Now the Mahira Khan's a statement was related to her. First, I like to say this: I am a Mahira Khan. I am pointing myself. It doesn't mean I am a Mahira Khan. She said, I am a Mahira Khan. If you are saying because of Islam you are seizing my entire property and my bank accounts and my money, each and everything, and you are sending me in Umrah, where is my efforts? Where is my hard labor money? I'm a human. Give me my money. Now, the Badi Masjid of Pakistan is saying, we created you. We gave you a profile, Mahira Khan. And you are living a life because of us. And it is a very good point. No, it can't be overruled. It is sanctioned. Because in Islam, whenever they introduce any actor or actresses on screen, it is completely a property of Islam. You can't deny it. No, you can't. Now, what is the way now? Now, Mahira Khan's father is saying, if I announce you are married, where is my haq mehr? I don't know what is the rule of haq mehr inside the Islam. Whether it will go in a pocket of a woman or whether it will poke. I know, but according to her father, according to the Pakistan's Islam, what is the real rule? Who can be the owner of haq mehr? Now Mahira Khan's father is very much keen to get haq mehr, and he is asking to the Badi Masjid. Now Mahira Khan is working very frequently in Indian film industry also and in Hollywood also. But the name is the same, Mahira Khan. Whether Hitesh Ray won
go in court as an attorney or not, the subject is the same. I'm warning you. If you are working as an Myra Khan, the entire money definitely will go correctly to Islam. Nothing is yours. This is rule number one in Islam. No money is belongs to any Muslim. No money. Each and every money is belongs to Pagambar Muhammad, and he surrender his money to Allah. This is the rule. Now what? The case is very simple. If you go to give the number, no, they are ready to take death. They are saying we are Shariat. We will not allow to anyone to interfere in our law. Maybe we can announce to give some money. Now why the blasphemy on a Myra Khan? Because of Humayun Shaheed, a film actor from Pakistan. Actually, a video was in media in a crowded place. Myra Khan was surrounded by the some male security guards, and Humayun Shaheed was just backside to her. He was standing. That was the reason. Badi Masjid said, we punished already Humayun Shaheed. Now this is turn. We will very soon announce punishment to Myra Khan also. The problem is, this problem is with so many film artists. The what can be the way? Now what can be the way? Now come to me. Now come to me. I can guide you. Without wasting your time, if you really like to enjoy your film line, your acting life, join Aman. Aman is a company of Ebix. Whenever you visit India, 98% movies belongs to Ebix. 98% movies. And inside the Ebix there is no problem, whatever is your name, whatever is your cult. And why I am asking you to join Aman? Because Aman is the only portal in entire world who can very easily transfer your money to you, and literally as they announce the entire money is in your wallet now, then you can go and talk to your agencies like CIA, IB, RAW, KGB, SIS, and ask them to take this money, or they will connect you directly to you. Announce your name is in now Ebix. It's not a subject. Inside the Ebix, you are a Muslim or a Hindu or a Buddhist or a Sikh. No problem. 98% movies are from Ebix. Very honorable lady Helen, हुस्न के, अब शायद हो सकता है गाना कोई और हो, मैं कुछ और बता दूं. एक मैडम है जिनका गाना है हुस्न के
लाखों रंग कौन सा। हाँ, फिर जी जी भर के मैडम ईवीक्स में आने के बाद ना जो मर्जी कर लेना यार। पैसा नहीं ले पाएगा आपका, आपसे आपका नाम नहीं ले पाएगा। घर के अंदर भी कोई बैठ के अगर चाहे ना, पाकिस्तान में ईबिक्स कहाँ है, और ईबिक्स को ज्वाइन करना है तो रेफरेंस तो चाहिए, हितेश मंडल है ना। वरना IAS में जाओ बेटा अमिताभ बच्चन की तरह। अमिताभ बच्चन जी के पास पिक्चरें ईबिक्स की जरूर है, पर वो ईबिक्स के आर्टिस्ट नहीं है। प्राण साहब ईबिक्स, अजीत साहब ईबिक्स, मैं नाम बता रहा हूं ना आपको। संजीव कुमार साहब ईबिक्स। मेरा नाम जोकर पिक्चर देखी है, ईबिक्स है। शोले देखी है, ईबिक्स है। धर्मेंद्र साहब ईबिक्स। जितेंद्र साहब ईबिक्स। ईबिक्स हर आर्टिस्ट के लिए एक दुनिया बना देता है। अगर वो आर्टिस्ट इस संसार से चला जाए ना, तो वो सारे सेटों की लाइट बंद कर दी जाती है हमेशा के लिए। आप जानते नहीं है ईबिक्स की खासियत। मानो या ना मानो, जमीन के नीचे फिल्मिस्तान है, ईबिक्स है। वो ऊपर जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, पर जो फिल्म के सेट नीचे बनते हैं बहुत बड़े बड़े, एज इट इज छोड़ दिए जाते हैं। नहीं, विनोद खन्ना साहब ईबिक्स नहीं है। विनोद मेहरा साहब ईबिक्स है। इतने बड़े बड़े नाम हैं, ईबिक्स कोई मामूली कंपनी नहीं है। जमीन के नीचे अगर आप घुसेंगे ना, और अगर ईबिक्स देख लेंगे, तो आप यकीन जानिएगा, आप कहेंगे कि इसे कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री। हॉलीवुड भी ऐसा ही है, हॉलीवुड से कम नहीं है ईबिक्स। रेड चिली एंटरटेनमेंट या मार्वल स्टूडियोज या यूनिवर्सल स्टूडियोज, ये सब भी है, पर ईबिक्स बहुत बड़ी दुनिया है। ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज। आप ईबिक्स ज्वाइन कर लो। मैं जानता हूं किसका आर्टिस्ट हूं, ईबिक्स का आर्टिस्ट हूं मैं। मैं ईबिक्स का आर्टिस्ट हूं मैडम। आपने सोशल मीडिया पे फिल्म बनाई या अपने मोबाइल फोन से बनाई, कुछ भी हो, कैसे ही हो, ईबिक्स पे आप वो बात करो, सारे लाइसेंस है। पर वो पाकिस्तान वाली सोच से तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि गाने बनाए डिलीट कर दिए, हितेश रेवन आईडी बंद कर दी। मरियम नवाज की सोच नहीं। ईबिक्स की दुनिया इतनी बड़ी है, आप सोच भी नहीं सकते। और ईबिक्स में जाने के लिए अमान से बेहतर कोई कंपनी नहीं है। पर जब आप लोग मर्डर या रेप या कैनिबलिज्म जैसे काम कर देते हो ना, तो ईबिक्स में नहीं आते। भले आप गाने या फिल्म बना रहे हो, पर ईबिक्स नहीं मिलती जी लाइफ। ईबिक्स लाइफ बहुत बड़ी है, ईबिक्स लाइफ नहीं मिलती। प्राण साहब को देखने के बाद समझ में आता है ईबिक्स लाइफ क्या है। बिल्कुल है। अमजद खान साहब ईबिक्स, हेलन साहब ईबिक्स। मतलब मुश्किल से 25-30 हटा दो बस, इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें बनी है। भारत के अंदर पहली पिक्चर जो बनी वो भी ईबिक्स थी। तो इसलिए अगर आप इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हैं, तो आप ईबिक्स ज्वाइन कर लो भाई। अपना पैसा अमान में बोल करके, अमान वाले आपकी प्रोफाइल बना देंगे।
और बिना देर करे ईबिक्स में भेजेंगे। पर मेहनत बहुत है, पर गंदे काम करके अमान में मत आना भैया। ये मत सोचना मैं किसी की गर्दन पे छुरी रख दूं या फला की प्रॉपर्टी छीन लूं, उसका मर्डर कर दूं या उसका बलात्कार कर दूं लड़की का, या उसकी गंदी वीडियो बना दूं और ईबिक्स में आ जाऊं। नहीं, बाहर जाओ। वो काम आप वो, हाँ मैं मुंह पे बोलता हूँ, आप शाहरुख खान जैसे लोगों से मिल लो, आप सलमान खान जैसों से मिल लो आप ना। ऐश्वर्या राय जी ईबिक्स नहीं है, पता है आपको। हाथ जोड़ लेते हम, क्योंकि जो ईबिक्स सेट बना के देता है ना, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। ईबिक्स है। रामायण श्री रामचरितमानस पे आधारित अरुण गोविल जी की रामायण ईबिक्स है। श्री बी आर चोपड़ा जी की महाभारत ईबिक्स है, देख लो। जरूरी नहीं कि उसके अंदर सभी आर्टिक्स ईबिक्स में साइन हो गए हों, पर हकीकत यही है भाई। मैं तो समझा ही सकता हूं, मैं तो बता ही सकता हूं। सिर्फ कैमरे पे आ जाने से आपकी परेशानियां सॉल्व नहीं होती। पर ईबिक्स में देवानंद साहब आ गए तो आ गए, दिलीप कुमार साहब, सायरा बानो जी, ईबिक्स है। ये इतने बड़े नाम हैं, कमा के छोड़ गए पैसा ईबिक्स में, अमान में। अब दिक्कत नहीं है, वो लग गया पैसा। जितनी मर्जी जनरेशन आगे बढ़ती जाए कोई मतलब नहीं, मेहनत तो मेहनत है। फिल्म कब कैसे बनेगी, सुपर मॉडलिंग किसे कहते हैं, अमान में आइए, पढ़िए। अमान इंडिया कह दिया तो एप्पल को याद रख लेना भैया। एप्पल मोबाइल फोन का नाम सुना है? एप्पल की कंपनी है अमान। किंग सलमान की कंपनी नहीं है, वो कंट्रोलर थे, वो चला रहे थे, और ओनरशिप एप्पल की है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं तो उन लोगों की मदद कर रहा हूं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, मेहनत करी है, किसी भी लेवल पे हो आप। ये मत सोचना कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्वॉय चलाते हैं, आप ड्राइवर है तो ईबिक्स में नहीं आ सकते। हाँ, आ सकते हो आप नाम लिखवा लो ईबिक्स में, आप अमान में जाके बात कर लें, बहुत आसान है, सबको पता है। आप ईबिक्स कंपनी में अपनी प्रोफाइल डाल के छोड़ दें, वो कर देंगे। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है ईबिक्स में काम करने के लिए। अगर आप ईमानदार हैं, आपका पैसा कोई नहीं ले सकता। आपकी मेहनत आप तक पहुंच जाएगी, आपकी शोहरत आपकी है। माहिरा खान की शोहरत माहिरा खान की है, हमें उससे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। पर्दे पे मैंने माहिरा खान को देखा, यार क्या एक्टिंग है यार। एक बात बता रहा हूं, भले ना हो एक्टिंग है तो है। मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान और इस्लाम और शरीयत, नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। सही है गलत है? एक डायलॉग मारा नहीं, स्क्रीन पे तालियों की गड़गड़ाहट मच गई। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ईबिक्स नहीं है, रजनीकांत साहब ईबिक्स नहीं है, कमल हसन साहब ईबिक्स नहीं है। देख लो, ये खेल है। जमीन के नीचे एक शहर, मैंने बताया ना, आनंद विहार से लेकर के भागलपुर तक जमीन के नीचे इतना बड़ा शहर बना दिया ना ईबिक्स ने, देखने लायक है। नीचे ट्रेनें भी चलती है। बनाया तो बनाया, अब आप फिल्मों में ढूंढते रहो। भयंकर मेहनत लगती है,
पर जब वो एक आर्टिस्ट बना रहे होते हैं तो उसके लिए वो शहर भी बना देते हैं। आर्टिस्ट चला जाता है संसार से तो सेट की लाइटें बंद है भैया, बस। और इतने प्यार करने वाले होते हैं उन आर्टिस्ट को लोग बाग, वो वहीं रह जाते हैं अंदर ही, खाना मिले चाहे ना मिले, कह रहे अब नहीं जाएंगे। पूरी ईबिक्स लाइफ आपने देखी नहीं है अभी, आना आइए, ईबिक्स लाइफ है, 9.5 है, हॉलीवुड है, कहीं जाइए पूरी दुनिया में, पर ईमानदारी पहले है। मन में अगर ये है कि मैं किसी का कुछ नहीं छेड़ूं, किसी का कुछ नहीं तोड़ूं, तो तरक्की करोगे भाई। ये कोई ये सोचे ना इसको धक्का मार दूं, उसको गोली मार दूं, उसका ये तोड़ दूं, उसका वो फोड़ दूं और मैं तरक्की कर जाऊंगा, तो भाई नहीं करता तरक्की। पीछे पुलिस का डंडा रखा हुआ, फिर ये असलियत है। नाम बहुत बड़ा है, 10 साल में एक बार बनता है। देवानंद साहब कब के, दिलीप कुमार साहब कब के, आज तक नाम है ना। क्यों? उन्होंने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी दिखाई। आप नहीं समझ पाओगे खेल। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियां रही हैं, उसको समझो। किसने क्या किया उससे मतलब नहीं, आपने क्या किया ये बताओ। तो जो ब्लास्फेमी का केस झेल रहे हैं ना लोगों को, उनको मैंने ये गाइड किया है। ये पूरी तरह फिल्म इंडस्ट्री में उतर जाओ, फिर तो पूरी तरह। गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 और देवडी 2 अब ईबिक्स में बनेगी। क्योंकि दोनों ही फिल्में मेरे पास है, नहीं भी बने तो बनेगी गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 और देवडी 2 ईबिक्स में। इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ चेक करते हैं हम। मेरा मुंह पे बोल दो, अब आसिफ शेख जैसा आदमी थोड़ी चाहिए जो भाभी जी घर पे है, सीरियल के अंदर गया, मेरे पास कंप्लेंट है, चल मैं चल रहा हूँ भाई, मुझे ले चल पुलिस में। आसिफ शेख के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, SCR में केस आया हुआ है, चल मैं चल रहा हूँ साथ, मेरे को बंद करा दे जेल में। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं यार। क्या हकीकत है। तो इसलिए भैया थोड़ा सा ध्यान से वीडियो वाडियो देख लिया करो मेरी यार। तुम पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट सबको पूरे करने हैं। कहते एक आदमी बहुत पहले कभी तैरना सीखा होगा, आज संसार में पता नहीं कितनों को तैरना सिखा गया। मैंने देवता और दानवों के बारे में बहुत पहले एक किस्सा बताया था एक वीडियो में, कि ब्रह्मा जी के पास नारद जी पहुंचे और बोला प्रभु, कहते हैं सृष्टि आपने बनाई, कह रहे हाँ जी। कह रहे देवता भी आपने बनाए, दानव भी आपने, कह रहे हाँ जी। पर ये फर्क कैसे है? कह रहे अपने आप होता है। कैसे? कह रहे सब इंसान की अपनी अपनी सोच और उसके कर्म है। पर मेरे समझ नहीं आ रहा। कह रहा अच्छा आप 2 दिन बाद आओ। ब्रह्मा जी ने भोज का आयोजन किया और देवताओं को बुलाया, पहले दानवों को बुलाया। तो दानवों ने कहा कि पहले हम आएंगे भोज में। दानवों को बुलाया गया, 2 लाइन बना दी गई, आमने सामने बैठ जाओ जी। सारे दानव बैठे थे और बीच में पत्तल बिछा दी गई। भोजन दिया गया तो जैसे ही खाने लगे ना, ब्रह्मा जी ने अपना चमत्कार दिखाया और हाथ जो है ना उनके ऐसे सीधे हो गए। वो मुंह तक आए ना, वो ऐसे होगा तो यूं जाए। अब खा ले, कैसे खाएगा? दानव उठाए तो ऐसे खाए, इधर से चला जाए, इधर चला जाए, मुंह में आए ना। दानवों को खाए, गुस्सा राक्षसों को, उन्होंने सब तोड़फोड़ मचा दी। करे क्या पागलपन है यार। अच्छा जी, अब देवताओं की बारी आई।
2 दिन बाद फिर बुलाया, कह रहा देखा आपने कुछ? कह रहा प्रभु अब भी नहीं समझा। कह रहा 2 दिन बाद आप फिर आओ। नारद जी फिर पहुंचे 2 दिन बाद, तो फिर से देवताओं को बिठाया गया 2 लाइनों में और बीच में पत्तल बिछा दी गई, खाना दे दिया गया। देवताओं के साथ भी ब्रह्मा जी ने वही किया। बहुत पहले सुनाया था मुझे किसी ने किस्सा, बहुत सुंदर है। और देवताओं का हाथ भी सीधा हो गया, वो खाएं तो ऐसे, कभी इधर तो कभी उधर, क्या करें। तो देवताओं ने कहा कि है इसका एक तरीका। कह रहा भैया मैं तो खा नहीं पा रहा हूं, ऐसे तो हाथ आएगा नहीं। उसने हाथ ऐसे करके यूं कर दिया सामने वाले को, बोला भाई तू खा ले यार, मैं तो खा नहीं पा रहा हूं। उसने, देवता ने खुद ना खा के सामने वाले देवता को खिला दिया, और देवताओं ने खाना खाया, भाई उसने उसे खिलाया, उसने उसे खिला दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी की तरफ देखा, कह रहा प्रभु समझ गया। क्या समझे? कह रहे जी दाना तो दाना भी रहे, खुद नहीं खाया तो दूसरे को भी नहीं खाने दिया, पर देवताओं की सोच देवताओं की ही है। अब खुद नहीं खा पा रहे तो भाई तू खा लेना यार, क्या हो गया। ये होता है खेल। तो भैया ऐसे ही किस्सों से इंसान की जिंदगी बनती है। समझो तो समझो, ना समझो तो ना समझो भाई। मतलब खुद वीडियो नहीं बनाएंगे पर हितेश मंडल की वीडियो जरूर डिलीट कर देंगे। हितेश मंडल नौकरी नहीं करता, पर जो ब्रेन वॉइस में बोल रहे हो ना, मैं सब सुन रहा हूं।